Farzana has been working as a lady health worker in Khairpur district of Sindh, one of the districts with the lowest maternal and neonatal health indicators. She had her own personal reasons for committing to the cause of reducing maternal and infant mortality rate in her district. However, her commitment had been further strengthened by the misery of the innumerable women she saw suffering in her area. Therefore, when Lead Pakistan offered the opportunity for working in collaboration with other stakeholders at a wider scale, she grasped it. मतलब मेरी 18 साल की उम्र में शादी हुई थी ना, तो जल्दी मुझे भी प्रेग्नेंट में हो गई बच्ची। मैं अपनी गलती की वजह से चेकअप नहीं करवा रही थी, इसलिए मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया तो हमने दाई से करवाई। तो 2-3 दिन मतलब मुझे पेन रहे, उसके बाद बच्चा हुआ। तो उसमें जो है ना ये बात मसला मेरे साथ हो गया। तो उसके बाद जो है 3 महीने के बाद हमने हैदराबाद में ऑपरेशन करवाया, तो सही तो हो गया था, लेकिन फिर भी शिकायत थी। तो अभी तक है 14 साल हो गए। छोटी उम्र में बच्चियों की शादी ना करवाएं, अगर करवाएंगे तो ये मसले हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो कितनी मायूसी और मतलब दुख की बात है। बस ये तो हम गुजारते हैं, हमें पता है। Lead Pakistan initiated a 2-year project enabling effective leadership for reproductive health in October 2007 in 2 districts, Khairpur in Sindh and Lodhra in Punjab. The success of the project in its early 2 years has led to its expansion in the second phase. There are no two opinions that Pakistan is off track in the race for achieving MDGs 4 and 5, that is, the MDGs related to child health and maternal mortality and morbidity. One of the reasons behind this failure is the absence of an effective leadership at community level and the lack of ownership at the community level. So given these realities, a project was designed and conceptualized to address these basic needs. The project has succeeded in forming a cohort of local, mid-career and multi-sectoral professionals in District Khairpur. They were belonging to diverse backgrounds of the life. Some were the journalists, some were the lawyers, some were the development professionals, some were the doctors. So it was a diverse group. लीड ने जो हमारे वजूद में एक छुपा हुआ लीडर जो था उसको उन्होंने उजागर किया, क्योंकि लाजमी है जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं, अपने लोगों के साथ काम करते हैं, तो अंदर में एक तो लीडर होता है ना जो बाहर आना चाहता है, मगर उस लीडर को हकीकी मानों में लीड ने उसको उजागर किया। और उनकी जो ट्रेनिंगें हैं वो हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं कि हम समझते हैं कि हमें 10 साल पहले अगर ये इस तरह की ट्रेनिंगें मिलती तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके होते। The interaction of the cohorts with the community led them to the realization that policy decisions are made and implemented without adequate representation from the people most affected by them. In order to bridge this gap between citizens and the decision makers, the cohorts compiled citizen reports. These are self-driven, locally organized reports. That report is being referred by the government as well, and that is one of the credible reports. You would happy to know that the donors who wish to work for the health, they are also, taking the reference from that report. There are 4 objectives. The first was to sensitize and mobilize communities on RH issues, to build a cadre of district level leadership on RH issues, and the third objective was to engage these district level leaders with the policy makers at district, provincial and federal level. The fourth objective of this project was to create a network of individuals and institutions to bring about positive change in the RH status of the district. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाई हुई हैं जिसको हम क्वाड एक्शन टीम्स कहते हैं। उसमें 4 से 5 लोग हर एक टीम में हैं और उनको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स दी गई हैं। उसमें कोई टीम BHUs को डायरेक्ट काम कर रही है, कोई पॉलिसी
लेवल पे काम कर रही है, कोई स्टेक होल्डर से मिल रही हैं, कोई रिलीजियस लीडर से मिल रही हैं। एक थिंकिंग है, आम सोच है कि मज़हबी लीडर्स जो हैं वो शायद कोई इस तरह की सोच नहीं रखते कि माँ और बच्चे की सेहत बेहतर हो, या बर्थ स्पेसिंग के लिए कोई उनके बड़े कोई एक्सट्रीम से अख्तलाफात हैं, या तो ये नहीं हुआ। जिस तरह लीड वाले या दीगर इदारे कर रहे हैं, इसी तरह उलमा हज़रात भी ये काम करें और इस पैगाम को आम करें कि भाई माँ की सेहत और बच्चे की सेहत कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह ज़रूरी है, और उसके लिए हम अपने तौर पर क्या क्या कर सकते हैं। जो ख़तीब हज़रात जुम्मा पढ़ाते हैं तो वो कोई महीने में एक जुम्मा इस हवाले से मुख्तस कर दें कि माँ की सेहत और बच्चे की नशो-नमा वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें क्या सबक मिलता है। Some of the cohort members are engaged in sensitizing and motivating the lady health workers. तो ये लीड वाले भी जो छोटे छोटे औरतों के मसले होते हैं उनका हल निकालते हैं, उनकी मुश्किलात दूर करते हैं। ख़ास बात ये थी कि गांव में जो छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब शादी करवाते हैं, वो जल्दी बेचारी बच्चों की माँ बन जाती हैं। तौलीदी सेहत के बारे में उन्होंने कहा कि आपको बताना है वहाँ पे। लीड पाकिस्तान कम जो टीम जे अचण जे करे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई आहे हिते, ऐं उहे मिली करे असां उनखे ऑफिशियली लिखी करे ॾींदा आहियूं। जेके असांखे सर्विस न आहिनि त असांखे हू प्रोवाइड कंदा आहिनि। PPH सां DSM साहब सां मिली करे असां कुझु सर्विस उन्हनि प्रोवाइड कयूं आहिनि। तक़रीबन जीअं त लैक्टेशन एरिया आहे, उहो पहिरीं न हो। उन लीड पाकिस्तान जन उन्हनि असांखे कुझु उन्हनि जेको आहे उनजे करे हिते लैक्टेशन एरिया असां डेवलप कईसीं। Different teams have visited our health facilities. Whatever deficiencies they have found at those health facilities, not only they have pointed out those deficiencies, they have also come out the solutions for those problems. Wherever action was required from our side, we tried to do that, and even wherever action was or support was required from Lead Pakistan, they did it. The print as well as the electronic media has a very important role to play in creating awareness about reproductive health. The project, accordingly, is conducting workshops and training sessions for journalists, particularly those working in less developed areas. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कुछ समझा ही नहीं जाता था, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अब हेल्थ की रिपोर्टिंग भी हो रही है और जितने लोग पढ़ते हैं वो बाशऊर हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये एक अहम मसला है। The major breakthrough of the LRH2 has been in selecting, training and engaging teenage girls from 8 talukas to sensitize their peers and community about reproductive health care. बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल्स लीडरशिप जो ट्रेनिंग है वो रिप्लिकेशन है हमारे कोर्ट की। जिस तरह हमें ट्रेनिंग्स करवाई जा रही हैं, हम वही ट्रेनिंग्स इन लोगों को करवा रहे हैं। सर जब ये पहले आए तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और हैरान हो गया था कि ये कैसे काम करेंगे, यानी कि अनलिटरेट फीमेल हैं और जो है कैसे काम करेंगे। तो उनके बाद जब 1-2 इनके डोज हुए, उनके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी वही लड़कियां जो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, अभी वो माशाल्लाह बोल भी रही हैं। उनके अलावा वो फील्ड में जा रही हैं, जो उनको काम दिया जाता है वो अपने गाँव में जाती हैं और अपनी औरतों को बताती हैं जो भी ट्रेनिंग में इनको बताया जाता है। Suhra, an uneducated, illiterate, but highly motivated teenage girl who had never stepped out of her house, is striving to understand the reproductive health in its broader social context. Today, thanks to Lead Pakistan, she is learning to take care of herself, her peers, and her community. She and her colleagues are agents of change, a change that is slowly but surely taking place in 8 talukas of the target districts. असांखे का ॼाण न हुई,
हाणे असांखे ॼाण आई आहे असांखे पंहिंजो सुठो एतमाद आहे। छोकिरी जी शादी कम से कम 18 साल या 20 साल खां पोइ कराइजे, जेतो पंहिंजे घर खे सही नमूने सां हलाए सघे ऐं पंहिंजे ॿार बच्चनि जो बि ख़्यालु रखी सघे। उनजी नंढी उमिरि में शादी थींदी त पंहिंजे घर ॿार खे न ई सही तरीक़े सां हलाए सघंदी, उनजी जेकी तबियत आहे उहा बि सही न रहंदी। उनजे करे 18 ऐं 19 साल खां उनजी वॾी उमिरि हूंदी आहे, उहो पंहिंजे घर ॿार खे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि संभाले सघे थी। असां पहिरियां खे घर तूं निकिरंदे कोन हुआसीं, हाणे ॿाहिरि निकितूं त ख़बर पिए ॼाण थिए त असां अनपढ़ हलूं, हाणे एतिरी ख़बर पइजी आहे त ॿाहिरि कीअं थींदा पे ऐं ॻोठ वाले को असां ॿुधाए सघंदे पियूं ते सिहत जे बारे सही। क्योंकि हमारे गांव में 1-2 लड़कियां थी और एक औरत थी, इसका बच्चा था, तो उनके हवाले से उनकी तबीयत ख़राब थी। तो एक हमारी गांव लड़की गई तो उनको कहने लगे कि नहीं जाओ, ये BHU में जाओ, उधर लेडी हेल्थ वर्कर उनसे ये टीका लगवा के आओ। उसने कहा आपको किसने बताया? दिया ले आती है हमें ट्रेनिंग बताने के लिए। The time is ripe for this social change, a change in attitude towards reproductive health in general and maternal and neonatal health care in particular. This change can only take place when the communities are informed, aware and empowered to influence the policy makers. This will need further assistance. तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है और बहुत सारे लोगों के साथ जो कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है और कोऑर्डिनेशन बिल्ड के बाद जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि एक दफ़ा आपने एक साथ कोऑर्डिनेशन किसी का साथ बिल्ड तो कर ली, लेकिन वो स्ट्रेंथन कैसे होगी, उसके साथ भी हमें एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम उस कोऑर्डिनेशन को काफ़ी सालों तक उसको लेके साथ चल सके। ऐसा फंडिंग होनी चाहिए और लोग आने चाहिए जो कि अपने तौर पे भी इनिशिएट लें और हम लोग अगर आज 40 लोग हैं तो कल 80 लोग हों ताकि हम लोग 80 कम्युनिटीज़ तक पहुंच सकें, 80,000 पीपल्स तक पहुंच सकें, फिर हम 80 लाख तक पहुंचे और इस तरीके से हम ओवरऑल अपने पूरे पाकिस्तान को जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अहमियत के बारे में बता सकें। Our people neither lack the passion nor the resources to bring about the change that will ensure a better tomorrow. LRH2 is building their capacity to do so. It needs to continue it a little longer. आपको इन लोगों के लिए काम करना है और आप में एक विजन होना चाहिए, आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप किसी के लिए तो नहीं कर रहे। तव्हां जी जेका ही टीम अचे थी इहा असांखे ॾाढी पसंदि आहे ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे खुदा कंदो त तव्हां अॻिते लाइ जेके कोशिशि कयो पिया इन में असां वधीक अञा बि जेके ॿार नंढा आहिनि, नंढी नस्ल असांजे ते वॾो सुठो असरु पवंदो।